Morning students, I'm Miss Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In that previous classes we have seen about the psychiatric emergencies. Okay, we have seen about the types of psychiatric emergencies. In that first we have done that is suicide. Okay, first type is completed and second type is violence, excitement, aggressive behavior. Okay, psychiatric emergencies, that means that the emergencies condition in the psychiatric department. Okay, so first we have seen suicide, second is the violence, excitement, aggressive behavior. Okay, what is that? Physical aggression by one person to the another person. Since violence, that means that is done by the one person to the another person. ठीक है, जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं, दूसरों के ऊपर एंगर शो करते हैं, दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर एंगर और एग्रेशन. ओके, जो कि वन पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, शो होता है या डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट होता है. ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज पेशेंट विल बी इरेशनल, अनकोऑपरेटिव, डेल्यूशनल एंड असॉल्टेटिव. ओके, जब भी एग्रेशन का स्टेज होता है पर्सन्स में, जब भी वो वायलेंट बिहेवियर में शो करता है, तब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट विल बी इरेशनल. ठीक है, पेशेंट क्या कर सकता, पेशेंट क्या होता है, इरेशनल रहता है. मीन्स वो क्या करता है क्या नहीं करता उसको खुद को कुछ पता नहीं रहता है. ठीक है, देन अनकोऑपरेटिव, पेशेंट को अगर हम लोग बोलेंगे कि आप ऐसा बिहेवियर ना करें, एग्रेशन शो ना करें, लेकिन वो कॉपरेट नहीं करेगा. ठीक है, उसका कॉपरेशन, लैक ऑफ कॉपरेशन रहेगा. देन नेक्स्ट इज डेल्यूशन and assultative. Delusion, that means the patient having the false fixed belief. Okay, then false fixed belief about any person, about any object. Okay, then next is and assultative, the person may be assultative. Assultative, that means the patient can assault self and the others. Okay, so violence is the physical aggression in that the patient having the uncooperative, irrational, delusional and assultative. Okay, the next is etiology. Here some disorders is there, some psychiatric disorders is there. Okay, delirium, dementia, Wernicke-Korsakoff psychosis, that is responsible for violence behavior. Okay, ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, इंटेलिजेंस इम्पेयरमेंट होता है, किसमें होता है, डेलिरियम एंड डिमेंशिया में, दैट में लीड टू वायलेंस बिहेवियर. ठीक है, पेशेंट इससे क्या हो सकता है, इरिटेटिव हो सकता है. ठीक है, देन Wernicke-Korsakoff psychosis, that Wernicke-Korsakoff psychosis occurs because of the deficiency of one vitamin, that is what, vitamin B1, it is thiamine. Okay, because of thiamine deficiency the patient having the Wernicke-Korsakoff psychosis. Okay, because of that psychosis the patient may be having violent behavior or aggression. Okay, so the next is अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. मीन्स कुछ और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से भी पेशेंट क्या हो सकता है, वायलेंट बिहेवियर शो करता है, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, एजिटेशन, डिप्रेशन, विड्रॉल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स. विड्रॉल, दैट मीन्स पेशेंट एक बार अल्कोहल लेना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद बीच में अगर उसको छोड़ देता है या विड्रॉ कर देता है, तब वो पेशेंट क्या हो सकता है, एग्रेशन शो कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट इज इपिलेप्सी, देन acute stress condition, panic disorder, personality disorder. So these all are some psychiatric disorder. Because of that the patient may be having aggressive or violent behavior. Okay, the next is what we have to do and what we don't have to do to maintain or to manage the violent behavior. Okay, so first is do's, means what we have to do to manage that behavior. Okay, first is what, protect yourself. We have to protect ourselves from that violent patient. Okay, the next is the unarm the patient, then keep the doors open. because वो अगर वायलेंट बिहेवियर कोई पेशेंट शो कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, खुद को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है ना. ठीक है, या तो फिर सुसाइड कमिट भी कर सकता है एक्साइटमेंट और एग्रेशन में. इसलिए हमेशा डोर्स को क्या करके रखना है, ओपन रखना है. देन कीप अदर्स नियर यू. ठीक है, हमेशा दूसरों को अपने साथ रखना है. देन डोंट रिस्ट्रेन इफ़ नेसेसरी, जब तक की ज़रूरत नहीं है हमको रिस्ट्रेन नहीं करना है पेशेंट को. ठीक है, रिस्ट्रेन दैट मीन्स उसको बांध कर नहीं रखना, उससे वो और ज़्यादा क्या हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है. ठीक है, असर्ट अथॉरिटी, जो भी हमारे अथॉरिटी पर्सन से लाइक डॉक्टर है या तो फिर जो भी है उनसे क्या करना है, सलाह लेना है, असर्टिटिवनेस लेना है. ओके, देन शो कंसर्न, establish rapport एंड एश्योर द पेशेंट. मीन्स पेशेंट को क्या करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करना है. ठीक है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे,
एग्रेशन में रहते हैं, पैनिक बिहेवियर शो करते हैं ना, इसलिए उनको काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काउंसलिंग करने से पहले हम लोग को पेशेंट को रैपोर्ट या ट्रस्ट डेवलप कराना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, कंसर्न शो करना पड़ेगा पेशेंट के साथ, ताकि हम लोग उसका क्या कर सके, ट्रस्ट गेन कर सकें। ओके, सो शो कंसर्न, स्टैब्लिश रैपोर्ट एंड एश्योर द पेशेंट। ठीक है, और पेशेंट को क्या करना है, समझाना है, एश्योरेंस देना है कि उनका प्रॉब्लम एक दिन क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है, अगर वो अपना बिहेवियर को क्या कर सके, कंट्रोल करें। ओके, सो these all are some points that we have to do with that patient, okay, with that aggressive or violent patient. The next, what we don't have to do, first is do not keep potential weapons near the patient। ठीक है, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स है पेशेंट के इन्वायरमेंट या पेशेंट के आसपास, उनको हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। देन डू नॉट सिट विद बैक टू द पेशेंट, पेशेंट के पीछे नहीं बैठना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज डू नॉट वियर नेक टाई और ज्वेलरी। ठीक है, जो भी गले में एकदम टाइट रहते हैं वैसे ज्वेलरीज को हम लोग को वियर नहीं कराने देना है पेशेंट को। ओके, डू नॉट कीप एनी प्रोवोकेटिव फैमिली मेम्बर्स इन द रूम, मीन्स पेशेंट को जिससे इरिटेशन होता है, ठीक है, पेशेंट को जिसको देखकर गुस्सा आता है, वैसे पर्सन्स या फैमिली मेम्बर्स को हम लोग को पेशेंट के आसपास नहीं रखना है, क्योंकि उससे इसका एग्रेशन लेवल और क्या हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। ओके, देन डू नॉट कन्फ्रंट। ठीक है, पेशेंट को डायरेक्टली बताना नहीं है कि आप गुस्सा कर रहे हो या आपके लिए हार्मफुल है, ऐसा पेशेंट को एकदम से डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करना है, नहीं जताना है, क्योंकि पेशेंट को उनकी गलती का एहसास दिलाएंगे तो हम लोग वो पेशेंट और ज़्यादा क्या हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। ओके, डू नॉट सिट क्लोज टू द पेशेंट, पेशेंट के साथ एकदम क्लोजली नहीं बैठना है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, उससे खुद भी हार्म पहुंचा सकता है, और अगर हम लोग उनके पास भी बैठेंगे तो हमको भी वो हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट से हम लोग को क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ओके, सो these all are points that we don't have to do. Okay, the next is management of violent patient. फर्स्ट इज अनटाई द पेशेंट इफ़ टाइड अप। ठीक है, अगर पेशेंट बंधा हुआ है तो हम लोग को उसको क्या करना है, अनटाइड करना है। द नेक्स्ट इज रीएश्योरेंस। ठीक, पेशेंट को हम लोग को क्या करना है, एश्योरेंस प्रोवाइड करना है, समझाना है। ठीक है, टॉक टू द पेशेंट सॉफ्टली, पेशेंट के साथ क्या करना है, वायलेंटली बात नहीं करना है, एग्रेसिव में बात नहीं करना है, सॉफ्टली बात करना है। ठीक है, देन फर्म एंड काइंड अप्रोच इज़ एसेंशियल। ठीक है, बहुत सरलता से हम लोग को उनसे पेश आना है। द नेक्स्ट इज आस्क डायरेक्ट एंड द कॉन्शियस क्वेश्चंस, मीन्स पेशेंट के साथ घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं करना है, आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस टू द पेशेंट। ठीक है, क्या खाए हो, क्या पिए हो, सीधे सीधे पूछना है उनसे। देन अवॉइड यस और नो क्वेश्चंस। ठीक है, ज़्यादातर जो एग्रेसिव वाले पेशेंट रहते हैं वो इन डिटेल में आंसर करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ठीक है, वो ऐसा आंसर करेंगे ही नहीं अगर वो गुस्से में रहते हैं, तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसका जवाब वो सिर्फ यस और नो में दे सके। ओके, द नेक्स्ट इज असिस्ट द पेशेंट इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब पेशेंट को कई बार ऐसा रहता है कि एक्चुअल कारण भी नहीं पता रहता है, प्रॉब्लम भी नहीं पता रहता है, और क्या करते हैं, वो एग्रेशन शो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर पेशेंट को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में क्या करना है, हेल्प करना है। ओके, so these all are some general management for aggressive patient. Next we will see about the some medical treatment, okay, or psychopharmacological management. In that, first is sedation. We will give diazepam 5 to 10 mg oral, slow IV to the patient. Okay, the next is haloperidol, that is 2 to 10 mg IM or IV. Diazepam we will give IV route, will not give in the oral route. Okay, the next is haloperidol, we will give 2 to 10 mg IM or IV, both we can give. Then chlorpromazine, we will give 50 to 100 mg IM. Okay, intramuscular we have to give. So these all some sedative drugs are there that we have to give to the aggressive patient to calm the patient or to make comfortable the patient. Okay, the next is collect detailed history and explore the cause. Then we have to identify the problem of the patient, so that we have to know the actual cause. Okay, so for that we have to do history taking, मीन्स हिस्ट्री टेकिंग जब पेशेंट के साथ करेंगे तो भी उनका एक्चुअल कॉज क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई हो सकता है। ओके, देन कैरी आउट कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर हिस्ट्री टेकिंग वी हैव टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन विद द पेशेंट। द नेक्स्ट इज चेक
hydration status, if severe dehydration, IV fluids. Okay, means if from the aggressive condition, if the patient has not taken proper fluid level, so we have to give IV fluids to the patient. Okay, the next is have left furniture in the room, remove all sharp objects and instruments, means because patient can harm self, so that we have to remove the all sharp objects and furnitures from the patient's room. Okay, the next is keep environmental stimuli to minimum, मीन्स ऐसे प्रोवोकिंग ऑब्जेक्ट्स या जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट का एग्रेशन बढ़ा सकते हैं, वो सारे स्टिमुलाई को हम लोग को क्या करना है, कम करना है. द नेक्स्ट इज स्टे विद द पेशेंट टू रिड्यूस एंग्जाइटी. पेशेंट का एंग्जाइटी जब तक कि कम नहीं हो जाता, जब तक कि उसका एग्रेशन वायलेंट बिहेवियर कम नहीं होता है, तब तक कि हम लोग को पेशेंट के आसपास ही रहना है. ओके, देन रीडायरेक्ट वायलेंट बिहेवियर विथ फिजिकल आउटलेट सच एज दी एक्सरसाइज आउटडोर एक्टिविटीज़. मीन्स पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, उनको कभी कभी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, रिक्रिएशनल थेरेपीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने को बोल सकते हैं. ठीक है, जिनके कारण उनका वायलेंट बिहेवियर कुछ हद तक क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है. ओके, देन इनकरेज द पेशेंट टू टॉक आउट एंड एग्रेसिव फीलिंग्स रेदर देन एक्टिंग देम आउट. मीन्स पेशेंट कभी कभी एग्रेशन में रहता है तो वो ज़्यादातर बातें नहीं करता है. ठीक है, शांत रहता है. इसलिए हम लोग को पेशेंट को ऐसा बनाना है कि वो खुद से ही अपने प्रॉब्लम को क्या करें, एक्सप्रेस करें. ठीक है, सो पेशेंट को हेल्प करना है, पेशेंट से हिस्ट्री लेना है, पेशेंट का प्रॉब्लम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इसके थ्रू. ओके, द नेक्स्ट इज फिजिकल रिस्ट्रेंट. फिजिकल रिस्ट्रेंट दैट मीन्स पेशेंट को क्या करना है, फिजिकली प्रोटेक्ट करके रखना है या रिस्ट्रेंट करके रखना है, जिससे कि वो खुद को या दूसरों को हार्म ना कर सके. ठीक है, यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट, शुड बी डन इन ह्यूमन वे, टेक रिटन कंसेंट फ्रॉम द केयर गिवर्स, सेट अ सेकेंड ओपिनियन इफ पॉसिबल. ओके, मीन्स पेशेंट को रिस्ट्रेंट करना है, पेशेंट को बांधना है, बांध कर रखना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या क्या करना है, यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट. ठीक है, अगर कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर पेशेंट का एग्रेशन और जितने भी मैनेजमेंट करने के बाद भी नहीं होता है ठीक, तब जाके एट लास्ट हम लोग को क्या करना है, उसको रिस्टैंड करना है. इससे पहले जो भी पॉसिबल मैनेजमेंट होता है वो करना है. ठीक है, अगर उससे नहीं होता है तो एट लास्ट हम लोग को पेशेंट को रिस्टैंड करना है या बांधना है. ठीक है, देन यू शुड बी डन इन ह्यूमन वे. ठीक है, पेशेंट को हम लोग बांध रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको एकदम प्रिजनर या तो फिर किसी और की तरह बांध कर रखिए, उनको ह्यूमन की तरह ही पेश करना है. ठीक है, द नेक्स्ट इज टेक रिटन कंसेंट फ्रॉम केयर गिवर्स. जो भी हम लोग को प्रेफर्ड केयर गिवर्स प्रेजेंट हैं उनसे क्या करना है, कंसेंट लेना है रिस्ट्रेन करने से पहले. देन गेट अ सेकेंड ओपिनियन इफ पॉसिबल. अगर रिस्ट्रेन नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना है, सेकेंड सॉल्यूशन या ओपिनियन ढूंढना है. ओके, सो दिस ऑल आर अबाउट दी violence. Okay, these all are about the violence, excitement and aggressive behavior. We have seen what are the introduction, etiology, do's, don'ts and management. Next we will see about the stupor catatonic syndrome. Stupor. Okay, what is that stupor? That is third type of psychiatric emergency. Okay, first is suicide, second is the violent or aggressive behavior, third is the stupor and catatonic syndrome. Okay, what is that stupor? Stupor is a clinical syndrome of akinesis and mutism but with the relative preservation of conscious awareness. Means पेशेंट क्या रहता है, अवेयर रहता है, लेकिन क्या रहता है, एकाइनेसिस मतलब मसल्स मूवमेंट ज़्यादा नहीं करता है, और ज़्यादातर पेशेंट क्या रहता है, म्यूटिज्म रहता है, मतलब म्यूट रहता है. ठीक है, किसी से बातें नहीं करता, किसी से कम्युनिकेट नहीं करता, हमेशा क्या रहता है, एक ही पोजीशन में रहता है और क्या रहता है, म्यूट रहता है. बट पेशेंट में बी कॉन्शियस अवेयर. ओके, देन ऑफन एसोसिएटेड विथ कैटाटोनिक साइन एंड सिम्टम्स. इसमें कुछ स्टूपर वाले पेशेंट और कैटाटोनिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में क्या रहता है, सम कैटाटोनिक साइंस रहता है. ठीक है, जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, कैटाटोनिक साइंस. कैटाटोनिक सिंड्रोम एनी डिसऑर्डर इन विच प्रेजेंट विथ एटलीस्ट 2 कैटाटोनिक साइन. ठीक है, हियर 2 वर्ड्स आर देयर. फर्स्ट इज व्हाट, कैटाटोनिक साइन. ठीक है, कैटाटोनिक साइन क्या होता है, देखो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं.
negativism, mutism, stupor, ambitendency, that is ambivalence, echolalia, echopraxia, catalepsy, stereotypes, vermigration, एक्साइटमेंट एंड इम्पल्सिवनेस। ठीक है, ये क्या है, साइकेट्रिक टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे कि नेगेटिविज्म, पेशेंट हैविंग द अपोज द समथिंग्स। ठीक है, पेशेंट हमेशा क्या करेगा, किसी भी चीज़ों को अवॉइड करेगा। ठीक है, नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा। देन नेक्स्ट इज म्यूटिज्म, पेशेंट में बी म्यूट, द पेशेंट में बी स्टूपरस। एम्बिवेलेंस, दैट मीन्स द पेशेंट हैविंग द टू कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग, yes or no. Okay. Echolalia, that means repetition of words. Echopraxia, repetition of any activity. Catalepsy, rigidity is there. Catalepsy, that means rigidity. Okay. Stereotypes means movement, repetition of movements are there. Okay. Vermigration, here repetition of words are there. Excitement and impulsiveness, the patient may be violent or impulsive. So these all are catatonic, some catatonic signs. ठीक है, अगर ये क्या है, कैटाटोनिक साइंस है। और हम लोग कैटाटोनिक सिंड्रोम कब बोलेंगे, एनी डिसऑर्डर विच प्रेजेंट विथ एटलीस्ट 2 कैटाटोनिक साइन। अगर इन जितने भी हम लोग पढ़े हैं कैटाटोनिक साइन, अगर पेशेंट में कम से कम 2 कैटाटोनिक साइन प्रेजेंट हैं, दैट वी कैन से दैट कैटाटोनिक सिंड्रोम। ओके, एंड व्हाट इज कैटाटोनिया, either excited or withdrawn. Okay, so these all are about the stupor or catatonic syndrome. If 2 catatonic signs are there, that is known as catatonic syndrome. Okay, the next is management for a stuporous patient. First is ensure patient patent airway. patient अगर एक ही पोजिशंस में लॉन्ग टर्म तक रहता है तो कभी कभी क्या होता है, चोकिंग सेंसेशंस होता है नेक में। ओके, सो फॉर दैट वी कैन गिव एंश्योर पेटेंट एयरवे, मीन्स हम लोग को देखना है कि पेशेंट का एयरवे या ब्रीदिंग कंडीशन, रेस्पिरेशन सही है या नहीं है। ओके, देन मेंटेन हाइड्रेशन, अगर पेशेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन में है, कुछ खाया पिया नहीं है, फ्रूट्स नहीं लिया है, तो हम लोग को डिहाइड्रेशन लेवल भी पेशेंट का क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अगर पेशेंट खुद से कुछ ले नहीं पा रहा है तो हम लोग को क्या करना है, राइल्स ट्यूब के थ्रू फीडिंग देना है और आईवी फ्लूइड्स हम लोग को चढ़ाने हैं पेशेंट को। ठीक है, देन नेक्स्ट इज चेक वाइटल साइंस। पेशेंट क्या रहता है, अनरिस्पॉन्सिव रहता है, किसी भी चीज़ के लिए वो एक ही पोजीशन में बैठा रहेगा, म्यूट रहेगा। ठीक है, और ये कैटाटोनिक साइंस शो करेगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, बार बार वाइटल साइंस लेते रहना है। द नेक्स्ट इज हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का एक्चुअल कॉज पता चले, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हिस्ट्री भी लेना है और फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है। ओके, देन ड्रॉ ब्लड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट, मीन्स हम लोग को लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले ब्लड विड्रॉ कर लेना है, उसके बाद ही कुछ फर्दर ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम लोग को पहले ब्लड टेस्ट करना है ना पेशेंट का कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, देन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉज एंड ट्रीट, मीन्स मेन प्रॉब्लम को क्या करना है, पेशेंट का आइडेंटिफाई करना है। देन बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट। प्रोवाइड केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट, मीन्स यहाँ पे अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो फुल्ली क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा दूसरों पे केयर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग को भी कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, बहुत सारे केयर प्रोवाइड करने हैं, ऑल थिंग्स वी हैव टू मैनेज। ओके, द नेक्स्ट इज केयर ऑफ स्किन, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन एंड पर्सनल हाइजीन इज रिक्वायर्ड इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू डू सो। देन गिव ventilatory support if needed. If patient having the suffocation or choking sensation, then we have to give ventilator if necessary. Means the patient is, if the patient is not able to take respiration or breathing or oxygen, then we have to put the patient in the ventilator. Okay, so here suicide, violent behavior and aggression, stupor, catatonic syndrome, this third psychiatric emergency is completed. Then fourth is what, panic attacks. In that, episodes of acute anxiety and panic occurs as a part of psychotic and neurotic illness. ठीक है, साइकोटिक और न्यूरोटिक इलनेस में दोनों में रहता है। पेशेंट क्या रहता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंगर और एग्रेशन रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रहता है पेशेंट, और वो क्या करता है, पैनिक अटैक शो करता है। ठीक है, देन मैनिफेस्टेशन,
मेनली जो पैनिक अटैक है वो क्या है, एक फिज़िकल ज़्यादातर इम्पेयरमेंट शो करता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। फर्स्ट इज़ palpitations, then sweating, because of that palpitation the patient having the sweating, ठीक है। then tremors is there, feeling of choking, patient having the difficulty in taking oxygen, the patient having the choking sensation in the neck. Then chest pain is there, because of lack of oxygen the patient may be having chest pain, nausea, abdominal distress, because of excessive stress condition or panic attack the patient having the abdominal distress, okay. Sometimes the patient having the diarrhea also. Then fear of dying, जब भी पेशेंट को क्या होता है, पैनिक अटैक आता है तो क्या करता है, या तो सुसाइड करने की कोशिश करता है या तो फिर उसको मरने से भी डर लगता है, ठीक। द नेक्स्ट इज पैरेस्थेसिया एंड हॉट फ्लशेस इज देयर, ओके। हॉट फ्लशेस दैट मीन्स द पेशेंट हैविंग द फुल्ली फ्लश्ड आउट व्हेन द पैनिक अटैक्स आर देयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंट क्या फेस क्या रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लश्ड आउट दिखाई देता है, ठीक है, जब भी वो पैनिक अटैक्स के कंडीशन में रहते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ देयर for panic attack. First is give reassurance to the patient, then search for causes, means we have to identify the actual cause of that stress or panic attack. Then next is we have to give sedation to the patient, like in the form of injection diazepam 10 mg or lorazepam 2 mg, okay. Then counsel the patient and relatives, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, रिलेटिव रहेंगे, पेशेंट है, उन सब को क्या करना है, काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। देन यूज़ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, बाय रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बाय एक्सरसाइज, बाय एनी अदर टेक्निक्स वी हैव टू गिव रिलैक्सेशन और we have to manage the violent behavior or panic attacks of the patient, okay. So here three types are completed for psychiatric emergencies: violent and excitement, aggressive behavior, next is stupor and catatonic syndrome, and last we have seen panic attack. So here some more points are remaining of psychiatric emergency types that we have to see in the next class, okay. 5 types we have seen, furthermore or remaining types of psychiatric emergencies we will see in the next class, ठीक है। साइकेट्रिक इमरजेंसी एक ब्रॉड टॉपिक है, ओके, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं, ठीक है। सो you have to see that, okay. Next we will see in the next class, okay. Thank you students.